हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान अख्तर कासमी। आज हम तमाम इस मौजू पे आपसे के सामने बात रखने आए हैं और आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने आए हैं कि आसिफ इकबाल तन्हा एक गयूर, जुर्रतमंद और हिम्मत वाला लड़का, जो कि झारखंड के एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से अपनी ख्वाबों को उड़ान भरने दिल्ली आता है। जब उसके सामने कई चीज़ें होती हैं नेशनल लेवल पे, तो वो अपनी उन करियर की ख्वाहिशों को और तमाम को हक़ व इंसाफ के लिए की लड़ाई के लिए और हिंदुत्व फासिज़्म के ख़िलाफ़ सामने से लीड करता है, तमाम तूफ़ानों से टकराता है और आज इसका नतीजा ये है कि सच बोलने वाले और सच की गवाही देने वालों को हिंदुस्तान में 1 साल से ज़्यादा सीए प्रोटेस्ट के ख़ास तौर से पस मंज़र में देखें तो जेल में बंद कर दिया गया है, बिना किसी सबूत, बिना किसी जुर्म, बिना किसी गुनाह के। तो आज हम तमाम लोग, हमारे स्पीकर्स यहाँ पे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रैटर्निटी मूवमेंट अबुल आला सुबहानी साहब हैं, हमारे साथ में नेशनल सेक्रेटरी आयशा रैना है। तो हम इस मौजू पे बात करने के लिए सबसे पहले आयशा रैना को मैं दावत देता हूँ कि वो अपनी बात रखें और तमाम लोगों को बताएं कि ये जो हमारे लोगों के साथ, लीडर्स के साथ गवर्नमेंट का बायस्ड नज़रिया है और 1 साल की ज़िंदान में जो कैद हैं, जेल में जो कैद हैं, इस पर वो अपना नज़रिया कैसे बात रखती हैं और क्या सोचती हैं। So I would like to call Aisha Rena to come up on the camera and say whatever she thinks about this issue, forced imprisonment and on fabricated charge on Asif Iqbal Tanha. Assalamu alaikum. Hope I'm audible, right? Yes, you are audible. Thank you. Salam. So today marks 1 year since Asif Iqbal Tanha, a student activist, a student leader, and unapologetic Muslim. Like, I don't have words to describe about him. So today marks a year since Asif was imprisoned on fabricated charges, which was mainly related to the anti-CAA protest, which actually happened in, which became a pan-India movement in all over the India last year. So I was really honored when the organizers told me to speak a few words about the Asif. He was such a close friend of mine, and I was never tired of speaking about Asif because that much closely associated both of us were. So first of all, I'll give you some, peripheral idea about the charges against Asif, who was Asif, and what he was actually doing and all. So Asif was 24 years old while he was getting arrested last year on 2020, May 16th. He was on the final years of his graduation in Jamia Millia Islamia University campus. Since the day he joined Jamia, he was actively participating in the protest activities and mobilizing students against the anti-Muslim, anti-human measures of the Sangh Parivar government. So we can see a pattern in all the arrests that happened, or all the arrests that happened related to the anti-CAA protest. Like all others, Asif was also arrested. He was called for interrogation on 16th of the May, and he was arrested on the 17th, the next day itself. So that was a pattern which was followed in the case of Asif also. He was interrogated first, and later he got arrested. So the Delhi police claims that, or the Delhi police is telling that, Asif is a key conspirator of the violence that took place in Jamia Millia Islamia on 15th of December. Like everybody knows, or like every single, Indian know that the thing that happened inside the Jamia Millia Islamia on the 15th of December was not a violence. It was a state-sponsored terror attack on the university students and their protest against the Citizenship Amendment Act, which was passed on the parliament a few days before. So later,
Asif was charged with UAPA, 124A sedition, 302 murder, 147 rioting, and 148. After a few months, Asif grant bail in one of the cases, but he is still inside the jail regarding with various other fabricated charges against him. This is the very basic or very significant issue related to all the arrests and all the political prisoners who are still inside the jails. The charges against them are very much fabricated. Everybody who is outside, or everybody who can, sensibly watch and hear the things, can understand that all the charges against them are very much fabricated. It's like Delhi police targeting certain student leaders who acted against them, who acted against the Sangh Parivar government. After arresting, they are building up the narratives, they're building up the charges, and they are building up the evidences in order to claim their charges, fabricated charges. So that was a very fine thing that happened in the case of Asif also. Almost everything was fabricated, and still it's been a year since Asif got arrested. Nobody, no the government, no the police officers could come up with a valid evidence against them. But they're still in the jail, they're still struggling. Even at the time of the COVID, even at this time of the pandemic, they're still struggling inside their jails. Let's hope that one day everybody will be released, including the Asif also. So now, talking about Asif as one of my friend, like it was during the anti-Israeli protest that happened in our campus, I was actually noticing Asif. So we were about to conclude the protest, we were about to end the protest. At that time, there were some confusions regarding the Shah Alam's. He was admitted at that time in the hospital related to one of the when the authorities tried to attack us. So at that moment, Asif stood up and Asif spoke for Shah Alam. He regarding his treatment and various other kind of things. So I was really amazed to see Asif as a leader and how committed Asif is to. Like, when everybody was concentrating in ending the protest or having a conclusion regarding the things happening, Asif also had in mind that he should make some clarity regarding the things that happening in the Shah Alam. So that is how committed Asif as a leader was, and Asif is also. And another incident was when I remember on the 12th night when the girls' hostel march was about to happen. We actually planned to meet inside the campus. Like, the girls from the girls' hostel will march to the campus. So the rest of the boys from the campus will join with us. And that is how we planned. Asif insisted on coming with us to the girls' hostel gate. And he told, like, let's everybody could start our protest from there. Everybody could begin as a together, as a group. So I was a bit confused in the beginning, but still he came with us. A group of boys also came with us to the girls' hostel. But later, I was really, amazed to see that amount of the impact that had on the protest march. The march became such a successful one, such a massive one, because they joined us from the beginning itself. So that was the time when I realized how amazing he as a leader, and his ability of taking up decisions in the app time, coming up with the app things and all. So that was about Asif as a leader, and that was some instance which I could share with you regarding Asif I had with him. Later on, the 13th and 15th of December also, he was brutally attacked, and he was literally in the wheelchairs. But still, he insisted on coming up and participating in the protest at that time. He never wanted to sit inside. So we told him, like, if you're not well, you can take rest. But Asif insisted, and he came and he participated in the protest along with us in different parts. Even he also went to the different parts of the India. He engaged with the people. He engaged with everyone regarding the things, and he explained to them how it's really going to affect us and all. Even after, when the COVID lockdown happened and when everyone was locked inside the house, Asif insisted on, doing the various voluntary activities outside. He even became a part of the COVID relief activities inside and outside the university campus, and he actively participated in all that things.
though it was a time when he was constantly being interrogated and his home was being raided and all other kind of disturbance he was facing from the part of the Delhi police, but still he came out and he contributed whatever things he could do to the society as a leader, as a basic human actually. So that was about Asif, and I was really also happy when a few months before, exactly 1 month before Eid, Asif called me from the jail and like he talked to me like everyone. Even we know that we were completely under the surveillance of the authorities, but still we could. I was so happy that we could share a few words together at that time, though it was not much in detail. He was. I can feel the same old Asif who was with me, who was with us, everyone. I can sense him, but he was only a little bit bored. He told like he is a little bit bored because there is nothing to do there, and I can understand how bored he will be because being someone who was actively involved around the society, when suddenly when he was told to confine under some walls, how difficult for him. But he sounded okay and fine, and I was very happy at that moment, though he called me, because it's been so long since I heard his voice. And uh, that was certain things which I wanted to talk about, Asif. Like, rather than talking about various other kind of things, I thought I'll share a few experience, a few of my memories with him, with you all, about which we had together at that time. So the main thing which I wanted to tell you all is that everybody know how fabricated the charges are, how Asif Iqbal Tanha got arrested, and how he is surviving inside the jail, how hard it will be for him. So I'm requesting everyone to please include him in your duas. Let's do whatever possible things to bring Asif outside. uh, let's start protesting against all this draconian laws and all the anti-human, anti-Muslim activities and the Sangh Parivar government together. Let's hope that, let's believe and let's pray that Asif would be released very soon. Let's speak up. Let's do whatever things possible for us in whatever means against this inhuman activities which is happening inside the jail, against the Asif's imprisonment. Let's pick up until the day he is released. Please include him in all your duas, and let's believe that he'll come out one day. We started our friendship with a cup of chai every time, whenever I'm in doing everything. I hope and I believe that Asif will come out one day, and we'll definitely have that cup of chai in our favorite spot in the Jamia, inshallah. Assalamu alaikum. Yeah, you have spoken uh, beautiful words. You have आपने बताया कि आसिफ इकबाल तन्हा कितने शानदार इंसान, हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहने वाले, कभी ना हार मानने वाले और कभी न डरने वाले, और हिंदुत्व और आरएसएस फासिज्म के सामने कभी न झुकने वाले बहुत शानदार लीडर हैं। कैसे उनको झूठे केस मुकदमों में फंसाया गया, और हम यही चाहते हैं तमाम उन लोगों से जो ये जानते हैं कि कैसे झूठे और फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ लगाए गए, उनको हटाया जाए। आसिफ इकबाल तन्हा को और उनकी तरह बाकी तमाम लोगों को जो झूठे चार्जेस में अंदर हैं, जेल में हैं, ड्रैकोनियन सीए लॉज में उनको अंदर बंद कर दिया गया है, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई है। उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, और वो लोग जो जेलों से बाहर हैं और आसिफ इकबाल तन्हा, फ्रेटर्निटी और इस तरह की तमाम तंजीमों और नौजवानों और लीडरान की सियासी और रेजिस्टेंस की काविशों में सहमति रखते हैं, उनसे गुजारिश भी आपने की और हम सब करते हैं कि उनको अपनी दुआ में याद रखें, और जो कुछ भी मुमकिन हो हम वो करें ताकि ये लोग जल्द से जल्द बाहर आ सकें। अब मैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इज़ाबुल आला सुबहानी भाई से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें आसिफ इकबाल तन्हा के बारे में, उनकी क्या राय है, वो कैसे इंसान थे और उन्होंने कैसी-कैसी खिदमतें अंजाम दी,
और फिर किस तरह उनको झूठे मुकदमों में जेल में बंद किया गया, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई। न सिर्फ उनकी बल्कि उनके ज़रिए तमाम उन लोगों की जो आरएसएस के मुकाबला करने का जज़्बा रखते हैं और हक की लड़ाई लड़ने का जज़्बा रखते हैं। कैसे उनको आसिफ इकबाल तन्हा से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो मैं अबुल आला सुबहानी भाई को दावत देता हूँ कि वो अपनी बात रखें। अजीज दोस्तों, आज एनटीसीए, एनपीआर, एनआरसी मूवमेंट का एक नौजवान लीडर आसिफ तन्हा की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे हो रहे हैं। ये 1 साल जुल्म, नाइंसाफी और बेरहमी के साल है, बेरहमी का साल है। इस 1 साल में कई मानों में हमने देखा कि किस तरह से एक स्टूडेंट को उसकी तालीम से महरूम कर दिया गया, उसके एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करने दिया गया। किस तरह से एक बूढ़े माँ बाप को उनके अकलौते बेटे से महरूम कर दिया गया। किस तरह से एक अकलौती बहन को उसके भाई से दूर कर दिया गया। और किस तरह से एक उभरते हुए लीडर की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आसिफ तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले 3 साल से एक उभरते हुए स्टूडेंट लीडर के तौर पर जाने जाते थे। और इस 3 साल में आपने देखा होगा, जितने भी हमारे साथी यहाँ जामिया मिलिया के हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हैं, कि हर प्रोटेस्ट में, हर मोमेंट में आसिफ तन्हा नुमाया नजर आते थे, उभरे हुए नजर आते थे और हर जगह वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। तो आसिफ तन्हा की गिरफ्तारी का ये 1 साल सही मानों में जुल्म और नाइंसाफी का साल है। आसिफ तन्हा के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके खुद आसिफ तन्हा के अपनी एजुकेशन के लिए, आसिफ तन्हा के अपने कैरियर के लिए ये एक संगीन जुर्म है जो हुकूमती मिशनरीज की तरफ से होता है, गैर कानूनी तौर पर स्टूडेंट लीडर्स को, स्टूडेंट्स को और युवाओं को गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए। और जब वो अपना डेमोक्रेटिक हक इस्तेमाल करते हैं, अपने राइट इस्तेमाल करते हैं, तो उस इस्तेमाल से उनको रोकने के लिए। आसिफ तन्हा अपने आप में एक बहुत ही मजबूत हौसले और अज़्म वाले एक स्टूडेंट लीडर थे। और जामिया मिलिया के बाहर, जामिया नगर में, बाद में मुख्तलिफ जो बड़े प्रोटेस्ट हुए मुल्क दिल्ली में, दिल्ली के बाहर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, आसिफ तन्हा उसमें एक उभरते हुए एक नौजवान लीडर के तौर पर जाने लगे थे। एनटीसीए मूवमेंट जब शुरू हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर को जब जामिया मिलिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जामिया की टीचर्स भी मौजूद थे, स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, यहाँ की जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो मौजूद थी। उस प्रोटेस्ट के में आसिफ तन्हा का एक लीडिंग रोल था। और उसके बाद फिर उसी दिन शाम में आसिफ तन्हा को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया। काफ़ी आसिफ तन्हा को चोट आई, लेकिन उसके बावजूद आसिफ तन्हा 15 दिसंबर का जो प्रोटेस्ट था, बड़ा प्रोटेस्ट, उसमें जामिया के 7 नंबर गेट पर होने वाले प्रोटेस्ट में काफ़ी एक्टिव रहे और काफ़ी एक्टिव रोल रहा उनका। जामिया में जब पुलिस ने जब एक्शन लिया और पुलिस की एक तरफ से जब स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुआ, तो उसमें आसिफ तन्हा को बुरी तरह से चोटें आई। उसके बाद भी आसिफ तन्हा अपनी हौसला नहीं हारते हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। आप देखेंगे कि 15 दिसंबर को जो उनको चोटें आई, उसके नतीजे में वो इतना जख्मी हो गए थे कि कई दिन तक, बल्कि हफ्ता 10 दिन तक वो व्हीलचेयर पर रहते थे। लेकिन व्हीलचेयर पे भी उनको सुकून नहीं मिलता था अपने रूम पर। वो अपने साथियों से बार बार कहते थे और फिर वो कभी जामिया के प्रोटेस्ट में चले जाते थे, कभी प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते थे। किसी भी तरह से वो कमजोर नहीं पड़ते थे, किसी तरह से अपने को कमजोर नहीं होने देते थे, बल्कि दूसरों के लिए हौसला और हिम्मत का काम करते थे। हम लोग बार बार उनको रोकते थे कि आसिफ जाना मुनासिब नहीं है, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी जख्म है, अभी जख्म ठीक हो जाने दो, नुकसान हो सकता है तुम्हारा। लेकिन आसिफ किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। जहां पर भी प्रोटेस्ट होता था, जहां पर भी मीटिंग होती थी, जहां पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आसिफ वहां जाने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ता गया, इधर बंगाल तक पहुंच गया, उधर केरला तक पहुंच गया, और जहां जहां से उनको बुलाया गया और जब जब बुलाया गया, आसिफ तन्हा वहां जाने के लिए तैयार रहे। और वहां जाकर उन्होंने
बहुत ही मुनासिब अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी बात रखी। और वो तमाम चीज़ जो आसिफ तन्हा की स्पीचेस हैं वो तमाम उनके फेसबुक अकाउंट पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे हमारे साथी उनको देख सकते हैं। ये एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ है हुकूमती मिशनरीज की तरफ से कि हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाती है जनता की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, युवाओं की तरफ से, तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए बहुत सख्त किस्म के इक़दाम किए जाते हैं, सख्त किस्म की जारहाना कोशिशें होती हैं। आसिफ तन्हा क्योंकि हमारे दरमियान बहुत मारूफ था, एक अच्छा स्टूडेंट लीडर था, एक उभरता हुआ नौजवान था, इस वजह से हम आसिफ तन्हा को जानते हैं, आसिफ तन्हा के फैमिली से वाकिफ़ हैं, आसिफ तन्हा के को जो होने वाला नुकसान है उस नुकसान से वाकिफ़ हैं। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो इस दौरान सिर्फ आसिफ का एक मसला नहीं है। आसिफ को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी वजह से हम इस वक्त यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये मसला उन तमाम प्रिजनर्स के साथ है जो सीए मूवमेंट के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गिरफ्तार किए गए। खास तौर से दिल्ली में अरेस्ट होने वाली जो बड़ी तादाद थी जिनको दिल्ली राइट के बाद अरेस्ट किया गया, उनके साथ एक बड़ा मसला है कि उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी जमानत के लिए कोई जाने वाला नहीं है, जिनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और कितनों के बारे में ये भी नहीं मालूम है कि उनका केस किस पोजीशन में है, उनके घर वाले किस पोजीशन में है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसका हम लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं। आसिफ तन्हा के अंदर शुरू ही से न सिर्फ एक अज़्म और हौसला था, बल्कि दूसरों के काम आने का जज्बा भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था। जामिया में स्टूडेंट्स के बीच में उनकी एक छवि थी कि कभी भी किसी स्टूडेंट का साथ कोई हादसा पेश आता था, कोई एक्सीडेंट होता था, कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाता है या किसी को फौरी रिलीफ की ज़रूरत है, तो आसिफ तन्हा को अगर मालूम हो जाता तो वो फौरी तौर पर न सिर्फ उस तक पहुंचते बल्कि फौरी तौर पर उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते। ये एक बड़ी खूबी थी आसिफ तन्हा की जो पिछले 3-4 सालों में अपने एक जूनियर स्टूडेंट के तौर पर और फिर एसआईओ के एक एक्टिविस्ट के तौर पर और अपने एक छोटे भाई के तौर पर मैं आसिफ तन्हा के यहाँ देखता था। आप देखेंगे कि ये जो सीएम मूवमेंट के चलते चलते अचानक जब कोविड की महामारी आई और उसके बाद मुल्क भर में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन का दूसरा दिन था। सुबह सुबह आसिफ तन्हा मेरे पास आए, एसआईओ ऑफिस में मौजूद था और पहली बात जो उसने कही यही कि अब्दुल्ला भाई किसी भी तरह से हमको फौरी तौर पर पास बनवाना चाहिए रिलीफ का, पुलिस से पास हासिल करना चाहिए और अपने रिलीफ वर्क को शुरू करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बड़ी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से यूपी, बिहार और बंगाल और मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए पैदल चले जा रहे हैं। कोई गाड़ियों का इंतजाम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, किसी चीज़ का नहीं। उसी वक्त हमारी गुफ्तगू होती है और फौरन एक टीम बनती है 10-20 लोगों की। आसिफ तन्हा फौरन यहाँ जामिया नगर में मौजूद जो दोनों पुलिस थाने हैं वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपना पास बनवाते हैं और सबको लाकर देते हैं। उसके बाद फिर वो दिन है और गिरफ्तारी का दिन है। इस पूरे मरहले में जितने दिन उनकी तबीयत खराब रही, जाहिर सी बात है वो बिस्तर पर थे, लेकिन इस पूरे अरसे में वो मुस्तकिल रिलीफ वर्क में लगे रहे। सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, सोने का वक्त हो, जागने का वक्त हो, जब भी उनसे कहा जाए कि फला जगह पहुंचना है, अभी जाकिर नगर ये किट लेकर पहुंचना है, जाकिर नगर पहुंच गए, जैतपुर लेकर पहुंचनी है कि जैतपुर जाने के लिए फौरन तैयार हो गए, मुस्तकिल एक्टिव रहे। और उनकी गिरफ्तारी के वक्त तक, गिरफ्तारी वाले दिन तक मुझे याद है कि वो किट बनवाने से लेकर किट दूसरों तक पहुंचाने तक इस पूरे काम में आसिफ तन्हा मुस्तकिल लगे रहे। और जब भी किसी मरीज के बारे में खबर आई कि उसके लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है, वहाँ हॉस्पिटल में उसको देखना है, उसमें भी पीछे नहीं रहे। कोरोना के मरीजों से आप जानते हैं कि कोरोना पेशेंट से सब भागते हैं, लेकिन आसिफ तन्हा की खास बात ये थी कि ठीक है वो मास्क और तमाम चीज़ों का एहतमाम करते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी मरीज को जरूरत हुई हॉस्पिटल ले जाने की, किसी मरीज को वहाँ हॉस्पिटल में देखभाल की जरूरत हुई और आसिफ तन्हा उसमें पीछे रहे। ये एक आसिफ तन्हा का खिदमत खल्क का, सोशल सर्विस का ये मिजाज था जो हम मुस्तकिल उनके अंदर देखते थे। इसी दौरान जब सीए मूवमेंट चल रहा था, उसी दौरान साथी जानते हैं कि क्राइम ब्रांच और उसके बाद स्पेशल सेल से उनको मुख्तलिफ नोटिस आनी शुरू हो गई, उनको बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए बुलाना शुरू किया। आसिफ तन्हा बहुत हिम्मत के साथ, बगैर डरे हुए, बहुत हौसले के साथ वो जब बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पहुंचे। गिरफ्तारी से पहले मेरे इल्म की हद तक 5 बार या उससे ज्यादा बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। कई बार क्राइम ब्रांच बुलाया गया, कई बार स्पेशल सेल बुलाया गया। हर बार वो बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ गए, कभी भी किसी तरह का डर और खौफ नहीं दिखाई दिया
क्योंकि उसका साफ कहना था कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने एक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया, मुल्क का कानून जो राइट हमको देता है उस राइट के मुताबिक हमने किया, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जो कानून के खिलाफ होती है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि आसिफ तन्हा की जो गिरफ्तारी हुई वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर हुई। उसके रूम पर शाम के टाइम इफ्तार के बाद ईद से चंद दिन पहले स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थाने के लोग पहुंचते हैं और फोन करके नीचे ये कह के बुलाते हैं कि नीचे आइए, आपका फोटो खींचकर स्पेशल सेल भेजना है, वहां पर आप हमारे आला अधिकारियों ने मांगा है। वो नीचे उतरते हैं और फौरन उनको गाड़ी पर बैठाया जाता है और बगैर किसी रिसीविंग के, बगैर किसी घर वालों को या रूममेट्स वगैरह को इत्तला दिए उनको खामोशी से वहां से लेकर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन दोपहर के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर बाकायदा एक तरह से गिरफ्तारी वाला जो प्रोसीजर होता है वो पूरा होता है। लेकिन ये 24 घंटे की जो उनकी तकरीबन 24 घंटे की या 18 घंटे कह सकते हैं, उसकी जो गिरफ्तारी का ये पूरा वक्त है, ये पूरा गैर कानूनी था। और सही मानों में देखा जाए तो ये गिरफ्तारी अपने आप में गैर कानूनी गिरफ्तारी थी कि किसी को बगैर इत्तला के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के इस तरह से उठाना और गिरफ्तार करना, ये किसी भी तौर पर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। जबकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको जब आपने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब आपने पूछताछ के लिए बुलाया, वो न सिर्फ आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे बल्कि जब आपने पुलिस थाने में बुलाया या क्राइम ब्रांच में बुलाया या स्पेशल सेल में बुलाया तो वो उसमें हाजिर हुए और उन्होंने पूरे तौर पर कोऑपरेट किया। जेल में आसिफ के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल के दौरान आसिफ तन्हा से जब भी उनकी कोई खबर मिली, जब भी उनसे बात हुई, वकील ने बात की, उनकी वालिदा ने बात की, उनकी अम्मी ने बात की, उनके अब्बू ने बात की, सबने यही कहा कि आसिफ तन्हा बहुत हौसले के साथ वहां पर हैं, बहुत हिम्मत के साथ हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है। वो दूसरे कैदियों के काम आते हैं, दूसरे कैदियों को हौसला देने का काम करते हैं, दूसरे कैदियों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है वो जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। लिखे पढ़े होने से फायदा ये हुआ कि जेल में मुख्तलिफ जो अनपढ़ और कैदी होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, इस टाइप के मुख्तलिफ लोग जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता और इस तरह के दूसरे होते हैं, उनके घरों पर चिट्ठी लिखना, उनके मुख्तलिफ फॉर्म्स वगैरह जो जेल के अंदर जरूरत पड़ती है वो फॉर्म्स पुर करना, नमाजें पढ़ाना, लोगों के अंदर जो अखलाकी बुराइयां होती हैं मुख्तलिफ उनको इस्लाह की कोशिश करना, ये तमाम चीज़ें आसिफ को मुस्तकिल अंजाम देते रहे। और आज भी ईद के मौके पर जब उनके वालिदैन के पास फ़ोन आया, उनके घर वालों के पास फ़ोन आया, घर वालों से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि जेल में रहते हुए कोशिश इसी बात की है कि जितने भी दूसरे साथी हैं उनकी इस्लाह का काम हो सके, उनको किसी तरह उनके अंदर जो कमजोरियां उनको दूर किया जा सके, उनको उनके जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो घर वाले भी इस चीज़ से मुतमईन हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में, जबकि वालिद उनके फादर इस वक्त बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी अम्मी को शुगर और दूसरी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आसिफ की इस मिजाज, आसिफ की इस हौसले के बावजूद जाहिर सी बात है कि माँ बाप के लिए जुदाई का गम सहना, बेटे से इस वक्त महरूम रह जाना कि 1 साल तक बेटे के दीदार से, बेटे को देखने से महरूम रह गए। बहन, अखलौती बहन, वो अपने भाई से दूर है, भाई से की जुदाई का गम सह रही है। ये तमाम चीज़ें देखने की हैं कि किस तरह से हुकूमती जब कहर का शिकार होते हैं नौजवान और तलबा, किस तरह से वो कितनी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। कि एक स्टूडेंट, इतना एक्टिव स्टूडेंट, इतना नेक स्टूडेंट, इतना दूसरों के काम आने वाला, सोशल सर्विस में हर वक्त लगे रहने वाला, जब भी किसी को किसी तरह की ज़रूरत पेश आती है उसमें लगे रहने वाला एक स्टूडेंट कितना अपने आप को मजबूर पाता होगा जेल के अंदर कि उसका अभी मतलब ग्रेजुएशन का मतलब ये कि अभी उसको अपने एजुकेशन का ये जो पूरा सिलसिला था उसको अभी कंटिन्यू करना था और अभी बहुत कुछ पढ़ना था। वो एमए करता, पीएचडी करता, यहाँ की हो सकता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ उसका कंट्रीब्यूशन होता। उन तमाम चीज़ों से महरूम जेल में इस वक्त अपना वक्त गुजार रहे हैं। फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके मुख्तलिफ अरमान रहे होंगे, मुख्तलिफ ख्वाब रहे होंगे और ख्वाबों को किस तरह से रोंदा जा रहा है, उन ख्वाबों से उसको किस तरह से महरूम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको अपने सामने रखनी चाहिए कि किस तरह से एक कानूनी इक़दाम के नतीजे में
उसको किस तरह से गैर कानूनी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, वो गैर कानूनी चीज़ें किस तरह से उसकी ज़ाती ज़िंदगी को, उसके करियर को, उसके घर के हालात को, तमाम चीज़ों को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही हैं। घरेलू सूरत-हाल भी जब तक कि वो यहाँ रहा, उसका मिज़ाज ऐसा था कि वो हमेशा खुश रहना, हमेशा दूसरों के साथ एंगेज रहना, दूसरों को खुश रखना और हमेशा हँसने-खेलने का जो मिज़ाज था और बिल्कुल फ्री माइंड रहने का जो मिज़ाज था, उसके नतीजे में हम में से बहुत से साथी जो बहुत करीब रहने वाले थे, उनको भी नहीं मालूम था कि घरेलू पोज़ीशन क्या है, घर में क्या हालात हैं, घर में इनकी अपनी क्या पोज़ीशन है। आखिरी वक़्त में गिरफ्तारी के अय्याम में जब करीब रहने का मौका मिला और बातचीत की, तो फिर मालूम हुआ कि घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ये घर का अकेला मुस्तक़बिल है। ज़ाहिर-सी बात है, बूढ़े माँ-बाप के लिए इकलौता बेटा जो है वो उनका ख़्वाब होता है कि अब इस बुढ़ापे में बेटा जो है वो बुढ़ापे की लठिया बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा और बुढ़ापे में उनके काम आएगा। तो इन तमाम चीज़ों से किस तरह से मतलब तमाम चीज़ें किस तरह से डैमेज हुई उसका अंदाज़ा लगता है। ऐसे मौके पर जबकि आसिफ तन्हा की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे हो रहे हैं और हम इस ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी को याद रख रहे हैं और इस मौके पर हमको न सिर्फ़ आसिफ तन्हा के लिए दुआ करनी चाहिए बल्कि आसिफ तन्हा की जैसे और भी जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, वो 1-2 नहीं है बल्कि एक बड़ी तादाद है। ख़ास तौर से दिल्ली में सीएम मूवमेंट के बाद जब यहाँ पर एक राइड कराया गया, बाकायदा एक फ़साद कराया गया, उस फ़साद के बाद जिस तरह से जो उसके असल मुजरिम थे, उन मुजरिमों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनको पकड़ा गया, ना उनसे कुछ पूछा गया। उसके बरअक्स जिस तरह से सी मूवमेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे और जो रोल प्ले कर रहे थे और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में उनको जिस तरह से बार-बार बुलाया गया, बार-बार पूछताछ की गई, उनको फिर मुख्तलिफ तरह से चार्जेज़ लगा के उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये एक खतरनाक चीज़ है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, मुल्क में ह्यूमन राइट्स का, मुल्क में आज़ादी राय का क्या मुस्तक़बिल होगा, क्या फ्यूचर होगा, उस जानिब हमें मुतवज्जा करते हैं, उस जानिब हमको फ़िक्रमंद करते हैं। आसिफ तन्हा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो यूएपीए जैसा काला कानून का उसको शिकार बनाया गया और उसके बाद जो चार्जशीट आई, चार्जशीट का जब हम लोगों ने पूरी स्टडी की, पूरा पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से एक पूरी झूठी कहानी, ऐसी कहानी जिसको पढ़ने वाले एक आम इंसान भी कहेगा कि ये पूरी कहानी बनाई गई है, गढ़ी हुई कहानी है, झूठी कहानी है। उस कहानी के तहत उसको रखा गया। अभी तक मुख्तलिफ सुनवाइयाँ हुई लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, अभी तक उसकी रिहाई का या उसकी ज़मानत की कोई सूरत अभी तक नहीं बन सकी है। ये एक बहुत फ़िक्रमंद कर देने वाला और बहुत ही परेशानी में डालने वाला एक सवाल है। इस मौके पर हमारे जितने भी साथी जिस तरह से भी कोशिश कर सकें, उनको कोशिश करनी चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने भी हमारे साथी इस वक़्त गिरफ्तार हैं, मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए अपनी-अपनी हद तक कोशिश करनी चाहिए। आसिफ तन्हा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ज़मानत पर रिहा होकर आएँगे और साथी भी रिहा होकर आएँगे और ये स्ट्रगल जो कानून के लिए कानूनी जो हमारी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि हम सबको मज़बूती अता करें। इस ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के माहौल में हम लोगों को हिम्मत और हौसले के साथ काम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बस यही कुछ बातें थी जो आपसे इस मौके पर करनी थी। एक बार फिर आसिफ तन्हा की हिम्मत और हौसले को सलाम। आसिफ तन्हा की फैमिली के साथ हम सब लोग खड़े हैं और हम सब लोगों को खड़े रहना तो बहुत बहुत शुक्रिया अबुल आला भाई। हमने अबुल आला भाई को भी सुना, उन्होंने बताया कि 1 साल से जेल में बंद नौजवान की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो सीए स्ट्रगल का नेता बनना चाह रहा था या बना, उसने लीड किया, बल्कि 1 साल से पर्दे के पीछे एक बहुत अजीम कुर्बानी है जो उसके माँ बाप दे रहे हैं, उसकी बहन दे रही है, उसके ख्वाब दे रहे हैं। कहानियों की एक दास्तानों की लंबी फहरिस्त है जो शब रोज़ आंसुओं में पिरो कर बह रहे हैं। हमको समझना होगा और जानना होगा कि आखिर कानून के चोले ओढ़कर ये जो गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं मासूम बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की हिमायत में खड़े होते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हक़ की बात करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनकी उम्र अभी कम है,
मगर फिर भी बड़े बड़े ख्वाब और जालिमों से टकराने का हौसला रखते हैं। उनके खिलाफ किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनके माँ बाप को सताया जा रहा है, उनके घर पे रेड्स की जाती हैं। आप सोच के देखिए कि उनके घर कैसा मंजर होगा। बुरे माँ बाप जो अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, अपनी लाठी समझ रहे थे, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और महज किस बात पर? एक झूठा अफसाना गढ़ा गया। चार्जशीट जो उनकी है, जैसा अबू लाला भाई ने भी बताया, एक अफसाना है, झूठी कहानी है जो कुछ भी साबित नहीं करती, मगर फिर भी उनको जेल से बाहर आने नहीं दिया जा रहा। उनको जमानत मिलने की अभी तक कोई सूरत सामने नहीं आ पा रही। एक ऐसा लड़का जिसने हमेशा खिदमत को अपने लिए प्रायोरिटी समझा। आपने अभी सुना कि जब लॉकडाउन आया और कोविड रिलीफ के लिए सुबह सुबह अब लाला भाई से आसिफ भाई जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की परेशानियां उनसे देखी नहीं जा रही। तो इनका कैरेक्टर बता रहा है कि वो आदमी सिर्फ माइक का नेता नहीं, स्टेज का नेता नहीं, वो लड़का, उसके दिल में लोगों की परेशानियां देखकर बड़ी बेचैनी होती है। और वो परेशानी जो एक इंसान के घर और बार बर्बाद और तबाह हो जाने के लिए हुई, तो उसने एंटी-सीए मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही परेशानी जब लोगों के भूख से और फाके से मरने की नौबत आई, तो कोविड रिलीफ में हिस्सा लिया। ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को दबाना, कुचलना, दरअसल एक पूरे तालीमी इदारे को दबाना और कुचलना होता है। एक लड़का जो किसी इदारे की आवाज़ हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए, स्टूडेंट लीडर उभरता हुआ हो, और उस पर इस तरह के ज़ालिमाना, मुजरिमाना इक़दामात किए जाएँ, तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि बाकी उसके साथी, उसके आस-पास रहने वाले लोग, उसके इदारे में पढ़ने वाले लोग, उसके गाँव, उसके शहर में बसने वाले लोग, तमाम के हौसले पस्त हो जाते हैं। इंसान का एक नेचर होता है सच बोलने का, सच को कबूल करने का। उसको कुचलने का जब इस तरह से कदम उठाया जाता है, तो कई ख्वाब, कई सपने चूर हो जाते हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा नेक और शरीफ इंसान जब इस तरह से फंसता है, तो लोगों का सिस्टम से और कानून से भरोसा उठ जाता है। आज इस एक गैर कानूनी और हम कह सकते हैं वहशियाना कानून जो सीए है, उसकी बिना पर जेल में डाले जाने को आसिफ इकबाल भाई को 1 साल हो गए हैं। इस मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं, और न सिर्फ उनको बल्कि उन तमाम स्टूडेंट लीडर्स को, उन तमाम लीडर्स को, उन तमाम माँओं को, उन तमाम भाइयों को जो सालों से करीब साल से, महीनों से जेल में बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सच कहा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने घर-बार को बचाने की लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने की लड़ाई लड़ी। ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम फ्रेटर्निटी के प्लेटफ़ॉर्म से और पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने से तमाम लोगों को ये दावत देते हैं कि आप हक़ का साथ दीजिए, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहिए। तारीकी चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह होने का यकीन हम सबको रहता ही है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम वन डे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।